Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, chapter 4 of your civics book, that is Gender, Caste and Politics. We all know, children, that there is a gender division not only in India but all over the world. Women are still considered the second gender in the nation or in the world. When I say second gender, means the kind of rights, the kind of freedom, the kind of liberty which the male gender has, the females are still struggling for it. उनके पास उस तरह की फ्रीडम नहीं है, उस तरह की इक्वालिटी नहीं है. And you must have read in the previous classes that how women are being treated in a very bad manner. Still, they are suffering in many parts of the country where they are ill-treated by their husbands, by their children, or by the number of people in the society. So why there is a gender division? Is it natural or is it biological, or it depends on our behavior or on our thought process? So if we see about and we talk about the gender division, it tends to be understood as natural and unchangeable. एक बॉय और एक गर्ल बनेगा, एक मेल और एक फीमेल है. हम इसी तरह से पैदा होते हैं. वी हैव गॉट बर्थ either as a male or we are born as a boy or as a girl. तो ये तो हमारा biological difference है. But the problem starts when there are different social expectations and which are stereotypes. Girls are good for household work and boys are supposed to be the breadwinner of the family. ये जो discrimination है in the society, ये चीज़ों को complicated बना देता है. अब ये difference क्यों है? I'm not saying difference कम होता जा रहा है. You people are studying in a co-educational school. You are coming together, you are sitting together, you are participating in activities together. There is no discrimination in your school or any sort that you are a boy so you can participate in this particular activity or you are a girl and you cannot do that. ऐसा कुछ नहीं है. और आप जिन घरों से आते हैं वो भी मोस्ट ऑफ अस आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जहां इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. बट अभी भी बहुत सारे एरियाज में अराउंड द वर्ल्ड, और अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टिल देयर इज दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वेयर दे से दैट गर्ल्स आर सपोज टू बी दे शुड बी द होम मेकर्स. घर संभालें, बच्चों का, हस्बैंड का ध्यान रखें. दिस इज देयर फर्स्ट ड्यूटी. एंड जो वर्किंग फीमेल्स हैं, देयर नंबर, देयर रेशियो इज स्टिल लेस. अब publicly or privately, how this division is being taken care. As you can see in the flow chart, the result of this division of labor is that though women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most society. अगर आप politically देखो तो फीमेल का जो रेशियो है in involvement in politics वो बहुत कम है. As the chapter will move further, I will tell you what percentage is there of female in politics, but the role is very less. If we talk about earlier times, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. Right to vote to women, आपने अलग-अलग, आपने जर्मनी के बारे में पढ़ा, you have read about France. एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स थे वहाँ, और फीमेल को पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में फॉल कराया जाता था. और बहुत लेट अराउंड 1950s 60s के आसपास जाके इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस फीमेल को राइट टू वोट मिला. एंड स्टिल देयर आर नेशंस इन द वर्ल्ड लाइक सऊदी अरेबिया जहाँ पे स्टिल द राइट टू वोट इज नॉट बीन गिवन टू फीमेल. तो दे हैव टू फाइट फॉर इट. ग्रेजुअली the gender issue was raised in politics. It demanded to enhance the political and legal status of women and improve their educational career opportunities.
The movement which were raised by women to get equality in personal and family life are called feminist movements. अब ये आपके ग्लॉसरी में is also given if you will see the chapter. फीमेल को अपने राइट्स के लिए उन्हें फाइट करना पड़ा, राइट टू वोट के लिए फाइट करना पड़ा. दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ करियर. तो उसके लिए द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, और इस मूवमेंट को क्या कहा गया? फेमिनिस्ट मूवमेंट. तो फेमिनिस्ट कौन है? जो इक्वालिटी की बात करते हैं फॉर मेल एंड फॉर फीमेल बोथ, एंड स्पेशली फॉर द फीमेल्स. So these kind of movements took place in our society as well and around the world as well. The political expression of gender division and political mobilization helped to improve women's role in public life. जैसे जैसे females को political rights मिलते गए around the world or in your country also, तो उससे female का जो role है as a women और एज अ यू कैन से अ लेसर जेंडर जो उनको कंसिडर किया जाता था, वो इम्प्रूव हुआ है. इंडिया की सोसाइटी अभी भी कैसी है? मेल डोमिनेटेड, यानी जिसमें फादर जो है वो हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द हाउस माना जाता है, हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, एंड फीमेल फेस नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस. अब ये डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन जो फीमेल फेस करती हैं इन द सोसाइटी, इसके बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स हैं, एज यू कैन सी. फर्स्ट, एज ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट. द लिटरेसी रेट अमंग विमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन. 100 में से सिर्फ 54 फीमेल्स हैं जो आज आपको लिटरेट मिलेंगी. हायर एजुकेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं. कंपेयर करते हैं अगर मेन के साथ मेल जेंडर के साथ, तो देयर द रेशियो इज 76%. सेकेंड, एज यू कैन सी, on an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day, and yet much of her work is not paid. अभी तो चीज़ें बहुत बेटर हैं. आज से कुछ साल पहले तक एवरीवेयर इन द सोसाइटी ये देखा जाता था, द सेम काइंड ऑफ वर्क which the male and female are doing, तो female were getting lesser amount as their salary. चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली फीमेल है या वो एक लेबरर है जो सिर पे ईंटों का पूरा ढेर लगा के 8 से 10 ईंटें लेके जा रही है, काम कर रही है, तो they were paying less. तो इस एक इनइक्वालिटी को, इस ये जो लेवल ऑफ इनकम था, इसको इक्वल बनाने के लिए one act was passed in the year 1976. जिस एक्ट का नाम था Equal Remuneration Act. इस एक्ट ने क्या किया? It provided equal wages for equal work to male and female. The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work. एक जैसा काम करने पे एक जैसी सैलरी मिलेगी, उसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. ये एक ऑफेंस है, इलीगल है. द फीमेल कैन गो टू कोर्ट. डिस्क्रिमिनेशन का थर्ड पॉइंट आप देखिए. सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस लेड टू अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो. हम सबको पता है फीमेल चाइल्ड है अगर मदर के वॉर्म में, तो उसको अबॉर्शन करा दिया जाता था कि बेटी नहीं चाहिए. कई जगहों पे बेटी के पैदा होने से पहले, कई जगहों पे पैदा होने के बाद. अब नाउ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इट इज इलीगल टू गेट द सेक्स टेस्टेड बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. आपने देखा होगा जितने ये अल्ट्रासाउंड सेंटर्स होते हैं या लेबोरेटरीज होती हैं, लैब्स होते हैं, पैथ लैब्स होते हैं, इन पे सब पे लिखा होता है गर्भ का निरीक्षण. It's not legal, means to check the sex of the child as per the government laws is illegal. और कितने केसेस आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, इस तरह के रैकेट्स हैं जिनको चेक किया गया, जिनको इनका पर्दाफाश किया गया, इनको अरेस्ट किया गया, वेयर दे वर डूइंग दीज काइंड्स ऑफ सेक्स टेस्ट. क्यों? क्योंकि बेटी एक बोझ थी
वो पढ़ाई लिखाई उसको कराने की ज़रूरत क्या है, उसको तो शादी करके दूसरे के घर चले जाना है. तो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी वॉज देयर. आई एम नॉट सेइंग थिंग्स आर स्टिल दैट बैड, बट येस थिंग्स आर चेंजिंग. पॉजिटिव साइन है. आज हम सब देखते हैं कि आपकी क्लास में जब हम पढ़ाने पहले आते थे, आज से 5-6 साल पहले, तो द नंबर ऑफ गर्ल्स वर वेरी लेस. जूनियर सेक्शंस में तो द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली. ऑलमोस्ट प्रपोर्शन बॉयज़ गर्ल्स का, अगर मैं कहूँगी हाफ नहीं तो 40-60 या 35-30-70 का रेशो अभी भी मिलता है, जो कि पहले इससे भी ज़्यादा पुअर था. तो इसके पीछे रीज़न है कि अब सेक्स टेस्ट नहीं होते. चेक करना बच्चे को कि पैदा होने से पहले इट इज़ इलीगल एंड द पर्सन कुड बी बिहाइंड द बार्स अगर वो पकड़ा जाता है. वरना द रेशो वॉज वेरी पुअर. इन लास्ट क्लास, इन क्लास 9th पॉपुलेशन चैप्टर, यू मस्ट हैव रेड कि अगर 1000 बॉयज़ हैं हरियाणा, राजस्थान जैसे स्टेट्स में, तो पर 1000 बॉयज़ के ऊपर 900, 950, 875 इस तरह से गर्ल्स का रेशो है, which is actually very poor. It should be equal in a healthy society. Then, as I told you, urban areas have become particularly unsafe for women. ये हम सब जानते हैं. ईव टीजिंग या जो रेप केसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं. ये एक बहुत, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग, आई मस्ट से. एज द पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड, बट this kind of not considerable behavior, or you can say cheap behavior, is also increasing in the society. Females are still not safe. और ये हम बड़ी उम्र की लड़कियों की बात ना करें, the problem is there for the younger girls also. So in the next video we'll be discussing about the topic further. So today till here we will I'll stop the video here only. So the conclusion of today's video is that there is a gender discrimination in the society between male and female. Female are considered lesser important. They are stereotyped with certain kind of work. Stereotype आपने 6th class में भी पढ़ा था, that the girls are supposed to play with dolls and the boys are supposed to play with guns. But things are changing and we hope that in future, जो आपकी generation जब और बड़े होंगे, आप लोग अपनी सोसाइटी में अर्न करेंगे, तो यू विल नॉट फील एंड यू विल नॉट सी दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच द फीमेल्स आर स्टिल फेसिंग इन आवर country as well as across the world. So thank you for today. Have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay home और पढ़ाई करिए. वीडियोस को बार बार देखिए. If you have any problem in understanding any topic, you are free to call me on my WhatsApp number. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. Thank you. Bye bye.